Okay. So what we are going to talk in today's session is primarily about the trade plan, because till last two sessions we talked about how to read charts. Those are very basic chart reading, I would say. जिसको नहीं आती है वो उसको फॉलो करके चार्ट रीडिंग कर सकता है, राइट? आपको मालूम है अब कि आपको 5 SMA के ऊपर बाय करना है, 5 SMA लो के नीचे सेल करना है। उसके साथ में अगर बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर कैंडल से फियर है तो हमको मालूम है कि हम हाइकनाची में जा सकते हैं। अगर हमें ट्रेंड लाइंस या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स या सपोर्ट रेंज आइडेंटिफाई करनी है, वी कैन ऑलवेज यूज द लाइन ग्राफ और लाइन ब्रेक ग्राफ्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ओके, वेयर डू आई नीड टू गो। हमारे एसएल्स छोटे हो जाएंगे, हमारा प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। बट अब अगर हमें ट्रेड करना है, राइट, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हाउ टू साइज अवर पोजीशंस। अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक्स कैपिटल है, तो उस एक्स कैपिटल के साथ में मैं साइजिंग कैसे करूं, मैं किस हिसाब से ट्रेड करूं। टुडे वी विल आल्सो टॉक अबाउट द मंथली फ्यूचर आर्बिट्रेज, जो मैंने कई ट्रेड्स डाले भी हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट जीएमआर इंफ्रा, we talked about HCL, we talked about Siemens, we talked about Bharti Airtel, we talked about Nifty itself, and why not Bank Nifty I have chosen there, right? We will discuss that. We will talk about the importance of trade plan, because if you have the trade plan, then the chances for your success are very high. When we are trading in futures, how we should trade, and what kind of risk reward we can expect there. And if time permits, I will talk about one intraday trading jackpot, which I can say, if it works well, and considering the range bound market, which is 70% of the times, that primarily works well, which gives around 15 to 20% return monthly on your invested capital in that trade. And adjustments are also very, very simple, where you need not to think about it. If you want, you can automate it, and that automation will keep on doing things for you. So if time permits, we'll take that. Otherwise, we'll take that in the options class, which we'll be doing in the next session. So सबसे पहले बात करते हैं position sizing की. There are many people who have practice of doing intraday. Many people who love to do positional only, positional swing trades, right? कोई कहता है I want to do only in indexes, or I want only the uh, I want only the stocks because I'm more comfortable there. Correct? So everybody is having their own choice, their own taste, and they trade basis their own interest. And but जब हम ट्रेड करने जाते हैं, हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो व्हाट साइज ऑफ कैपिटल हमें वी शुड इन्वेस्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हमें किस कैपिटल साइज के साथ में जाना चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल कैपिटल, अगर मैं कहता हूं लेट्स से 10 lakhs है, आई वुड रिकमेंड, अगर आप ऑप्शंस में हैं, don't use more than your 40% or 50% of your capital, because you never know when you require the remaining 50% capital for the adjustments. If you are doing future trading, there I would recommend don't go beyond 30% of your capital. If you are option buyer, don't go beyond your 20 to 20% capital. Even 10% is also more than enough. If you are intraday trader, as you are trading on margin, use hardly 15 to 20% of your capital. Because if you will start playing with this, your losses will be smaller, but your profits are going to be higher. And the chances of recovering loss from the existing trade are very high, right? Sometimes we find a trade very lucrative. Okay, buy a future. Okay, if from Nifty, let's say, moves from 18,500 to 18,600, I will just get 5,000 rupees in a minute. And that's nothing but 5% on the invested capital, because Nifty का future 1,10,000 में आ जाता है, 100 पॉइंट मिल गया, हमारा 5,000 बन गया। बट इन रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाता है, वो देता कम है, लेता जाता है, जब भी हम नेकेड ट्रेडिंग करते हैं। तो hedge is the insurance which I always use in my all the trade plan. Whenever I create any trade, right, I have thought process that yes,
This is the trade and this is what I need to do. Now I'll share my screen and we'll talk about this future monthly future arbitrage which we have been talking about. Or I will share with you some, I'll share that how it works in our favor. So let me share my screen. Just give me a second. आपको स्क्रीन दिख रही है? If anyone can confirm. Yes. Perfect. So हम लोग इसमें ऐड करते हैं with Nifty will December future, Jan future. Shift this. जब मैंने ये ट्रेड आइडेंटिफाई की थी निफ्टी 50 और दिसंबर फ्यूचर और जैन फ्यूचर वाला, जिसमें हमने दिसंबर के फ्यूचर को सेल किया था और जैन के फ्यूचर को बाय किया था, उस टाइम पर जो डिफरेंस था निफ्टी टू दिसंबर फ्यूचर वाज अराउंड 160 पॉइंट्स जब मैंने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था. एंड बैंक निफ्टी दिसंबर टू निफ्टी जनवरी फ्यूचर डिफरेंस वाज हार्डली 95 पॉइंट्स. ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि हमने जब डिफरेंस देखा कि 95 पॉइंट्स का डिफरेंस है दिसंबर टू जैन, एंड आई एम हैविंग द डिफरेंस ऑफ अराउंड 160 पॉइंट्स ऑन दिसंबर टू स्पॉट, so that gives me the leverage that if I sell and if January 1 I consider it further reduces to 160 points, it is not going to, because it will go pretty in the money. No, it will go pretty near the price, which never happens. So Last 2 minutes, January 1 will. Last 2 minutes, there was some gap. There's a voice issue. Audio issues. Sure. Is it better now? Yes, sir. It's back to normal. Thank you. Perfect. Okay. So मैं वापस से बताता हूँ कि जब मैंने निफ्टी दिसंबर का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, तो क्या था कि दिसंबर का फ्यूचर ट्रेड कर रहा था स्पॉट से अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स और दिसंबर से जैन का फ्यूचर ट्रेड कर रहा था अराउंड 85 टू 95 पॉइंट्स. तो मैंने देखा कि इसमें रिस्क काफी कम है और रिवॉर्ड मेरे पास काफी ज्यादा है. रिस्क कब है? जब निफ्टी दिसंबर स्पॉट और जनवरी स्पॉट दिसंबर फ्यूचर एंड जनवरी फ्यूचर दोनों स्पॉट से जाके मिल जाते हैं, तब मेरे पास रिस्क चालू होता है. Then I will lose this 80 points which is there in the Nifty Jan future. But 99% this does not happen. I would say out of 12 expiries, monthly expiries, I have seen this hardly once or twice जब इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ हो, right? And I do it very often with around, I would say 20% of my capital. मैं 10% कैपिटल से चालू करता हूं जो इस ट्रेड के लिए लगाया हुआ है, या निफ्टी के लिए जो मैंने ट्रेड डिफाइन किया हुआ है कि निफ्टी में मेरी 4 स्ट्रेटजी चलनी है, तो इन 4 में से उसका 20% इसके लिए निकाला हुआ है कि भाई 20%, बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट ट्रेड. करेक्ट. अब मैंने इसमें होगा क्या, जब एक्सपायरी आएगी दिस 160 पॉइंट्स विल बी क्रेडिट टू मी, सो आई विल गेट दीज 160 पॉइंट्स, and the chances of bank nifty jan future losing its points is very less, which means it may lose hardly 100 or 110 points. It will again be standing with the 140 or 130 points at the beginning of the month.
विच मीन्स एक्सपायरी नहीं हुआ है, एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप देखोगे नॉर्मली निफ्टी का जो फ्यूचर होता है वो स्पॉट के बिल्कुल पास आ जाता है, और जो बैंक अगले महीने का फ्यूचर होता है उसके और उसके बीच में काफी डिफरेंस होता है। वो टाइम होता है जब हम इस ट्रेड को बुक कर लेते हैं और हम रिवर्स ट्रेड अगले महीने की क्रिएट कर देते हैं, विच मीन्स कि हम जनवरी का फ्यूचर बेच देंगे और फरवरी का फ्यूचर खरीद लेंगे। तो इस प्रोसेस से एक 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट पर लॉट आपको मिलता है, जिसमें आपको कोई एमटीएम मैनेज नहीं करना है। आपके एक ट्रेड में 25,000 रुपए का मार्जिन लगता है। 25,000 के मार्जिन पर आपने अगर 4,000 रुपए बना लिया है तो आपने 15-16% का रिटर्न बिना कुछ किए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक्स में Sir, एक can you चैलेंज आता please है हमें। explain what is the logic behind this, sir? Okay, so I in Hindi, I'll explain in English as well. So what happens, approximately 2 to 3 days before expiry, Nifty December future will reach almost near to the spot. It may not be merging exactly, it may be 10-20 points away. So out of those 160, I will get the 70 points, 140 points or 150 points. But this Jan future is not going to reduce much. It will reduce hardly 10 to 15, 100 to 115 points. Right? So what will happen? I will have the profit of around 70 to 80 points there. अब जब मेरे को when I got these 70 to 80 points, that is my profit, because by month end it has to merge. But chances of this merging with this spot are very less. Does VIX has This any happens- role here, sir? No role of VIX, nothing. It's a very vanilla arbitrage you can do in any script. Any futures which are there, just we need to identify two things. If we get the better gap here, I'll just open a link as well for you. I often use this. So this gives me the list of futures which are having the difference from their spot. So in this case, if you see Oberoi Realty is having the difference of around 14.25, 700 lot, which is 1.6%. What I do next is I go back to the next one and I see where is Oberoi Realty here. I found it is having also the difference of 16.4. There we were having around 15 points. I am having only difference of 0.2%. Correct? 910, and I go back here, 908. This is a very good case for arbitrage for me. I will sell this. It has to go and meet with the spot, and I will buy the next one. Very simple process to identify any of such arbitrage for your trading. And the best part is you do not need to keep any money for the M2M. In case due to any reason the risk, the gap increases, right? So I just keep margin to average my position by double. For example, I have taken 4 lots. I will next buy 4 lots. If after that also it expands, I will go for 8 lots. सर ये थोड़ा सा सर हिंदी में बता देंगे। बिल्कुल, मैं दोनों ही लैंग्वेज में कवर करूंगा, डोंट वरी। अब अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक लिंक है, आई विल शेयर दिस लिंक इन दी चैट एज वेल। आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप्स में मैं डाल दूंगा इसको। यहाँ पर क्या आता है कि हमको पता लगता है कि किस किस स्टॉक में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, एंड दिस गिव्स दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर टू स्पॉट, which means this is the current spot price and this is the future price. When I identified, yes, I am having the 1.6% difference for Oberoi Realty. What my next step is, I'll just quickly go in the next, which is the January future here, and I will try to see where is Oberoi Realty. Okay, it is having the difference of only 1.83, because here also it is giving me the difference from spot. अब मुझको मालूम है कि ये 911 रुपए का है इंस्टेड ऑफ 894,
and this one is for 908.75, which means कि 2 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं और मेरे पास रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे 14 पॉइंट का, और वो 2 रुपए का भी रिस्क नहीं है। मतलब मुझे इसमें 8 या 10 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। 5,000 6,000 I can make on the capital investment of 7,000. Now when I buy it, what happens with the stock? In the beginning you will find the near month stocks are very much liquid. ये liquid होंगे, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, but the next month आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर हमको ये बाय करना है तो लोअर साइड जो भी प्राइस होता है, राइट, अगर हम I'll just open this, or rather I'll open this. If I just say Oberoi Realty December Jan, अभी तो हमको इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। जो भी बिड साइड में लोअर वैल्यूज हैं, राइट, आई विल जस्ट कीप माय ट्रेड हियर, आई विल जस्ट पुट इट हियर, एंड एज सून एज इट इज एग्जीक्यूटेड आई विल गो एंड execute December 1. I will check the bid offer difference. If it is pretty liquid, I'll just go ahead and put it as market. Else, whatever price I am getting, because I am going to have difference hardly of 1 or 2 rupees. So for this, we need to wait for some time. And the best time to exit is the last Monday of the month. We should not carry it till the end, because in few stocks, you start like getting the additional margin requirement from your broker. में क्या होता है, हमें जनवरी का फ्यूचर प्रॉपर लिमिट ऑर्डर पर बाय करना है टुवर्ड्स द बिड साइड। जो भी लोअर का ऑर्डर है यहां पर दिमाग लगा के रखना है कि जो आता है आई विल बाय इट, वंस आई हैव बॉट इट देन आई विल सेल इट। स्टॉक्स में क्वांटिटी 2 से ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए, विच इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जनरली पीपल लाइक द फंड मैनेजमेंट और द बिग प्लेयर्स, राइट, FIS, they do this a lot. This is the simplest arbitrage one can do in any of these stocks you find here. The only difference is this gives the list of by 2 minutes difference. You need to refresh, so you have the price here, which is 2 minutes before the price which was running on the window. अगर इस पर किसी की कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज we can ask, we can discuss about it. इसमें आपने वो जो प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट किया वो कैसे किया सर? कितना पॉइंट का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट किए? सॉरी, आपका क्वेरी नहीं समझ में आया। सर आपने ये दोनों फ्यूचर के डिफरेंस में आपने इसका प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया ना, इतना प्रॉफिट हो सकता है? ठीक, मैं बताता हूँ। लेट मी ओपन एन एक्सेल फॉर दैट, शायद समझ में ज्यादा इजी से आएगा। I'm just switching to Excel now, okay? Just give me a minute. So अभी हमने क्या देखा था, स्पॉट का प्राइस था 894, जैन के फ्यूचर का प्राइस था 908.75, sorry, this is December future. जैन के फ्यूचर का प्राइस था 910.11. What I will do here, right, for profit, what will happen on, let's say, 29th December? We consider this price remains same, or this price changes to, let's say, 950. Okay. This 908 will also become 950. Yes. Correct? I'm just inserting one more column so that we can keep a date of 26th December as well, which is a Monday. Monday, let's say it is 965, and this would be around 967, because it will not have much difference than this on that date.
But what will happen, this January future will be around minimum 960. Correct? And here it would be around approximately this. When I'm having this 700 quantity here, what happens here? I sold this, right, at this particular price. I sold this. So this is my selling price. This is my buying price multiplied by quantity. This is my loss in this particular move. But what would happen? This minus this multiplied by 7. मेरे को प्रॉफिट होगा 6748 और अभी इसी ट्रेड को मैं आप जब तक आप लोग को दिखाता हूं, एक मिनट दीजिए, मैं पहले इसको मार्जिन आपको और कंफर्म कर दूं एग्जैक्ट कितना मार्जिन आपका लगेगा. सर अगर स्टॉक 865 चला गया तो वो भी इस एक्सेल में ऐड करने पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर. वो भी बताता हूं आपको. अगर हम ये ट्रेड बनाते हैं, राइट, तो जब ऑर्डर लगा रहे होंगे तो हमको लगभग 2 लाख रुपए चाहिए होगा, बिकॉज ब्लर रियल्टी के फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए आपको 2 लाख का मार्जिन चाहिए. बट जब ये ट्रेड बन जाता है तो आपको मार्जिन कितना लगता है? 22,973. अगर हम कहते हैं कि 23,000 का भी मार्जिन लगता है, करेक्ट, और मैं इसके ऊपर 7,000 और ऐड कर लेता हूं फॉर एमटीएम, मेरा मार्जिन कितना दिया मैंने? 30,000. मेरा प्रॉफिट कितना है? 6,700. मैं कहता हूं इसको और बर्स्ट कर देते हैं. मैं कहता हूं ये भी अगर 967 ही रहता है, नहीं 967 तो रह नहीं सकता, बिकॉज उतना तो कम नहीं होगा ये. 977 और के आसपास भी रहता है, या 975 भी रहता है, बिकॉज अगर 10 रुपए का भी डिफरेंस रह जाएगा स्पॉट में जैन के लिए, तो भी मुझे 4600 का प्रॉफिट होता है. अब मैं इस प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करता हूं, which is a 15% profit on my margin which I have kept for this particular trade, where my invested margin is 23,000 and 7,000 is only for MTOM in case $75 or $878, something like that. Let's say $875 only. What happens? My profit is still there. I am losing in 1 lakh, I am gaining in 1 lakh. Only what I am doing, I am trying to get this delta, right? तो delta मुझे यहाँ पर मिल रहा है. I am just trying to take the benefit of this. इन दोनों का डिफरेंस सही नहीं है. अगर इसमें डिफरेंस 14 है तो इसका डिफरेंस एटलीस्ट 24 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर की वैल्यू तो सर इंटरेस्ट के ऊपर दो कैलकुलेट होती कंडीशन है, और राइट? बता दोगे सर? हेलो यस. सर, एक तो ये है ना, जो स्टॉक वहीं का वहीं रह जाता है, और अगर एक डाउन चला जाता है, उन दोनों केस में सर क्या होगा? क्या चीज डाउन चला जाएगा? मतलब जैसे ये आप जब क्रिएट कर रहे हैं और ये जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, मंडे वाला 26 दिसंबर को, जी, उस दिन अगर स्टॉक मतलब जब बनाया था उसी प्राइस पे हो जाए और या फिर डाउन चला जाए, तब क्या हो सकता है? देखो डाउन का हमने ये सिनेरियो ले लिया, इसके पहले वाला सिनेरियो हमने अप का लिया था. मैं कहता हूँ स्टॉक 894 पर भी एक्सपायर हो रहा है, हाँ राइट? व्हाट वुड हैपन? 894 आपके फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी? 896.
से ज्यादा नहीं होगी। हाँ हाँ अगर आप एक्सपायरी के टाइम पर फ्यूचर पर देखोगे तो एक्सपायरी से जो पहले वाला जो एक्सपायरी वाला वीक होता है, मंडे ट्यूसडे में फ्यूचर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, सारा प्रीमियम जो उसमें इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो चुका होता है। करेक्ट। करेक्ट। और फिर जनवरी का फ्यूचर की प्राइस क्या होगी इस टाइम? जनवरी के फ्यूचर की प्राइस आपकी कम से कम 905 रुपए के आसपास होगी, कम से कम होगी है। ऐसा कभी हो सकता है क्या आगे वाला फ्यूचर डिस्काउंट में चले जाए? ऐसा कंडीशन भी हो सकता है क्या? ऐसा कंडीशन टू बी ट्रू, मैं इस ट्रेड को पिछले 2 साल से कर रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं फेस किया। और सर इसमें एक और इवन डाउट जब है मैंने कि फ्यूचर को भी डिस्काउंट में जाते देखा है, राइट, देयर आर मल्टीपल शेयर्स जहां पर फ्यूचर डिस्काउंट में चला जाता है -20 -30 पॉइंट्स मैंने देखा है, बट जैन का फ्यूचर भी उसी रेशियो में माइनस में जाता है। ओके। और उसमें यार सर ये डिविडेंड का क्या रोल है उसमें? उस टाइम पे भी कुछ फ्यूचर में चेंज होता है ना? डिविडेंड के टाइम पर भी फ्यूचर में चेंज होगा तो, बट वो दोनों में ही चेंज होगा ना, एक में तो करेंगे नहीं। अच्छा, मतलब डिविडेंड से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो प्रोपोर्शनेटली दोनों में इंक्लूड हो हमारा जाए। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेरा लॉजिक सिंपल है, मेरे को जो रेशियो मिलेगा, राइट, यहां पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा था, आई एम जस्ट गोइंग बैक हियर, मेरे को कितने का डिफरेंस आ रहा था? 1.35। कहीं पर 14 का डिफरेंस है, मेरे को सिर्फ 1.5 रुपए का इंटरेस्ट के साथ में ये मिल रहा है, तो मेरे को ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है जिसको कि मैं आराम से सेल कर सकता हूं, ट्रेड ले सकता हूं। बट चैलेंज ये आता है कि आपको स्टॉक्स में ये बहुत कम टाइम ऐसा मिलेगा, और इसको मैं आई एम वर्किंग ऑन पुटिंग अप ए स्कैनर एज वेल फॉर दिस, कि जहां पर मैं ये बना पाऊं कि सारे फ्यूचर्स में मुझे करंट टू नेक्स्ट लाइव इंफॉर्मेशन मिल पाए। आई एम वर्किंग ऑन ए सिस्टम जहां पर हम इसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1.3 आप कैसे कैलकुलेट किए? में बना रहे हैं या स्ट्रीक में बना रहे हैं लाइव स्क्रीन? एक एक सर एक एक करके अगर डिस्कस करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सर ये 1.3 आपने कैसे कैलकुलेट किए थे? सर डिफरेंस क्या है, जनवरी के फ्यूचर का स्पॉट से डिफरेंस है 16 पॉइंट का, Yes, 910.1 माइनस 894। yes, दिसंबर के फ्यूचर का डिफरेंस है 908.75 माइनस 894। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए ना। yeah, अगर मैं भाई अगर यहाँ पर 14 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी तो कम से कम 10 का डिफरेंस आना चाहिए। yes, अब डिफरेंस ऑफ दीज टू इज हार्डली व्हाट 1.3, yes. विच मींस कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 12-13 रुपए खाने की अपॉर्चुनिटी है, मैं खाऊंगा। ओके ओके ओके। आप एक लॉजिक सोचो ना, मैंने अगर 10 पॉइंट भी कमा लिया इस ट्रेड में तो मेरे को 7,000 रुपए मिलता है, मैंने ब्रोकरेज वगैरह सब निकाल दिया, पूरा खर्चा निकाल दिया, उसके बाद में भी मेरे पास में 6,000 रुपए बचता है। और अगर मैं 6,000 रुपए 30,000 पर करता हूं तो कितना अमाउंट होता है? 20%। एंड सर इसमें मैक्स रिस्क क्या है? में 99% रिस्क नहीं आता है, बस अगर कभी कभी आई वुड से जब बड़ा पैसा गेम खेल रहा होता है तो वो इनके डिफरेंस को फिर बढ़ाता है, राइट। वो हो सकता है कि डिफरेंस को इसको रिड्यूस कर दे थोड़े टाइम के लिए और इसको बढ़ा दे। वो टाइम होता है जब मैं इसको एवरेज करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो 2 दिन ये करेगा, चौथे दिन उसको भी वापस ले जाना है, बिकॉज सारा बड़ा पैसा इस काम पे लगा हुआ है। सर गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। ठीक गुरप्रीत जी। हाँ जी सर, इसमें और यार कब पहले buy चीज आप करना? लोग प्लीज सर बुलाना बंद करो, मैं कोई सर नहीं हूँ, आई एम जस्ट सचिन, मतलब हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं तो वो चलो। बता रहा हूँ कि मैं क्या आइडेंटिफाई किया मार्केट में। चलो ठीक है सचिन जी, इसमें कौन सा बाय करना कौन सा सेल करना, मान लो इस वीक इस मंथ में सेल करना है या बाय करना, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सर सिंपल लॉजिक है, पहली कंडीशन ये है कि मेरा जो दिसंबर का जो नेक्स्ट फ्यूचर आ रहा है वो स्पॉट से 1% से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। और उसका अगला फ्यूचर 0.5% और 1% के अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 1% से जितना नीचे होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो जिसमें हमारा गैप कम हो गया हम इसको बाय करते हैं,
और जिसमें हमारा गैप ज्यादा हो गया इसको हम सेल करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। सेल हम नियर बाय को करेंगे बिकॉज ये हमारे को जल्दी पहुंचाएगा जीरो होने के लिए। जो इसका प्रीमियम है, जितना भी इसमें इंटरेस्ट एडेड है, वो सब माइनस हो जाएगा एंड तक। सचिन जी, और इसमें इसका बनानी टाइम कब तक होती नहीं है होगा। पोजीशन? सर ये पोजीशन तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं दिन में 10 बार भी बनाता हूं और दिन में 2 बार भी बनाता हूं और महीने में 1 बार भी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं, होता है, जैसे अगर आप, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है ना। सर मैं ये पोजीशंस ऑलरेडी बना चुका हूं और आप अभी भी बना सकते हो। लेट मी नाउ गो बैक टू एक्सेल, मैं आपको सॉरी टू स्क्रीन, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। अब अगर हम अभी की भी बात करते हैं, निफ्टी में ही इस चीज को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं, राइट। निफ्टी का स्पॉट है 512, दिसंबर का फ्यूचर है 645, विच मींस कि हमारे पास यहाँ पर 130 पॉइंट का डिफरेंस है। और निफ्टी दिसंबर टू निफ्टी जनवरी में अभी डिफरेंस है 110 पॉइंट के आसपास। तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास, वर्स्ट केस। तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5%। अब मैं यहीं पर, मुझे अपॉर्चुनिटी यही देखनी है कि जिस दिन ये वापस से वो डिफरेंस आए। अब अगर आप यहां पर भी देखो, मैंने जब ये ट्रेड दिया था टेलीग्राम पर, दोनों चैनल्स में हम लोगों ने ट्रेड डाला था, तो द प्राइस ऑफ दिसंबर फ्यूचर, अगर आप मूवमेंट देखोगे, निफ्टी इंडेक्स मूव 28.65 पॉइंट्स, दिसंबर फ्यूचर मूव ओनली 19.8 पॉइंट्स, विच मींस 20 पॉइंट्स। जो वो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो गया ना वहां पर। और आपका निफ्टी 23 जन फ्यूचर 36 पॉइंट्स, मेरे को डबल बेनिफिट हुआ ना। इसको मैंने सेल किया था, इसमें मेरे को 8 पॉइंट एक्स्ट्रा बच गया ना। और अगर मैं इस ट्रेड की बात करता हूं तो 16 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट है एक लॉट में। करेक्ट। अब यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में डिफरेंस कितना है आपको, 270 टू 983, अराउंड 280 पॉइंट्स। और यहां पर कितना डिफरेंस है, 200 पॉइंट्स। जब उस दिन मैं बैंक निफ्टी देख रहा था तो डिफरेंस ज्यादा नहीं था, मतलब 80 पॉइंट तो फिर भी यहां दिख रहा है हमें, 40 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा था। 40 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इज नॉट लॉजिकल, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। करेक्ट। तो हमें यह समझना है कि हमें जितना बेटर गैप मिल जाएगा उतना हमारे लिए बढ़िया है, जितना बेटर गैप मिल जाएगा। बहुत से एफआईआई इंस्टीट्यूशंस यही करते हैं, उनका काम है कैश में खरीदना, आइडेंटिफाई करना विच फ्यूचर्स, और उनके सारे एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए। और बहुत बार ये ट्रेड्स हमें इंट्राडे मिलती हैं, वो गैप सिर्फ 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट के लिए आता है। गैप आया, 5 रुपए का डिफरेंस आया, बाय मूव, आपने एग्जिट किया, 10 मिनट में आपको क्या हुआ, 4, 5, 7 पॉइंट प्रॉफिट के मिल गए इमीडिएटली। आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम जहां पर ये चीज ऑटोमेटिकली हो पाए, कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े, सिस्टम में, सिस्टम खुद ही ढूंढ रहा है और वो स्कैन करके जैसे ही ट्रेड आएगी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली लगाता रहेगा। दिस इज वन थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस। अब इसमें अगर अभी भी कुछ क्वेरीज है तो वी कैन डिस्कस, एल्स लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सर आपने स्टॉक में जैसे बताया कि सेल 1% क्या अगर अबव होगा तो मतलब वो ट्रेड अच्छा रहेगा, तो वैसे निफ्टी में कितने पॉइंट चाहिए अबव सेल के लिए? कम से कम 50 पॉइंट का तो डिफरेंस मिले।
दोनों के डिफरेंस के बीच में कम से कम 50 पॉइंट तो मिले, तभी तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट कैसे होगा? Sir, can this be done between Nifty and Bank Nifty as well? No, that is the pair trading. That's a different aspect altogether. Okay. This is the arbitrage of the same stock. सर इसका ऑपोजिट कभी हो सकता है क्या, मतलब नेक्स्ट मंथ का बाई करे और उसका अगले महीने का सेल करे, कभी हो सकता है? नहीं, मैं वो प्रेफरेंस देता नहीं हूं, ठीक है, बिकॉज एक आध बार ऐसा मैंने ट्राई किया था कैनरा बैंक में, और इन दी एंड थोड़ा पैसा देकर ही आया था, लेकर नहीं आ पाया था। ओके। सर ये M2M जो है, जैसे एक में कम होता है तो दूसरे में ज्यादा होगा, तो हमें M2M फ्लक्चुएशन तो अकाउंट में लेवल पे तो नहीं आएगा ना वैसे? नहीं आएगा। आपके Okay. ट्रेड लेवल पर मैंने क्या बोला, जो हम लोगों ने एक्सेल में लिया था, अगर आप फिर से मैं बास्केट आपको दिखाता हूँ, इस बास्केट में मैंने बनाया था, आपका मार्जिन क्या आ रहा है? 24,000 हाँ रुपए, सर, 23, हाँ 23,000। राइट। मैंने तो 6,000 रुपए का M2M भी मान लिया कि अगर मान लो कभी बड़ा पैसा गेम खेलेगा, वो हंटिंग करना हाँ। चाहता है आपके एसएल की, तो वो क्या करेगा, वो गैप बढ़ाएगा, वो गैप पे हमारा क्या होगा, M2M शायद लग जाएगा, ठीक है, मैं तो और खरीदने के लिए बैठा हूँ वहां पर, बढ़ाओ आप गैप, आखिरी में तो लेकर आओगे ना, या तो स्पॉट को वहां ले जाओगे या उसको यहाँ ले आओगे। और सर ये जो मार्जिन है, ये एक्चुअली बाइंग मार्जिन ये 23,000 का बता रहा है और फाइनल मार्जिन ऐसा बता रहा है, तो वो सेलिंग का भी कंसिडर कर रहा है क्या प्रीमियम इसमें? सर जब आप ट्रेड लगाओगे तो आपको 2 लाख का मार्जिन चाहिए होगा, राइट। जब ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन रिलीज हो जाएगा, आपके पास तो मात्र 24,000 23,000 रुपए का मार्जिन लगेगा। ओके। Sir, are there any Important- adjustment needs to be done? The only adjustment which I do in this, in case of the gap further increases, right? Let's say if big money is playing and they want to make us exit, so I don't exit very often. If they are increasing the gap, and the gap increases by again, I would say 0.5% or so, I will double my quantity. If I am having 4 lots, I will go with further 4 lots. I will have my quantity as 8 lots. A gap between December and January, sir, or in between spot and December? December and January. सचिन सर, बट And क्वांटिटी actually- घुसाना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें डबल करना है। क्या चीज जैसे हुआ है? क्वांटिटी मैं ट्राई कर रहा था मल्टीपल लॉट्स में, तो क्योंकि स्लिपेज था इतना, तो 4 लॉट 6 लॉट घुसाना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल होगा मोहित, अब मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं इसको सबसे ज्यादा इंडेक्स में करता हूँ, या जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं उसमें करता हूँ। मैंने इसका सबसे बड़ा चैलेंज जो आइडेंटिफाई किया था वो यही था कि ओबेरॉय रियलिटी जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, राइट, इसके जैन के फ्यूचर में उतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो इसको जब भी ट्रेड भी करते हैं ना, तो हम पहले जो जैन का फ्यूचर है उसको बिड के लोअर साइड पे हम परचेज करते हैं। वो मैं समझ गया, ये कभी लिमिट भी लगा मार्केट के ऑर्डर रखते नहीं हैं। होता है, ये हाँ, लिमिट लगा के रखते हैं, रखते हैं। जैसे ही ये ऑर्डर ट्रिगर होगा आई विल गो अहेड एंड सेल दिस। करेक्ट। यस। पर उसमें भी सर मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा था, सिर्फ मैंने इतना ट्रेड नहीं किया है। जैसे वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो रहा है ना उसमें, स्लिपेज जैसे HCL में देख रहा था मैं कल, उसमें क्या हो रहा था कि मैंने लिमिट लगा के रखा हुआ था, बट उसमें क्योंकि मार्केट का उस स्टॉक में थोड़ा कैश में फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो बड़ा क्वांटिटी घुसा देने पे, जैसे मैं अगर 4 लॉट से ट्राई कर रहा था, तो बाकी मतलब स्लिपेजेस इतना ज्यादा हो सकता था कि probably that could be That 1.5 could have been rupees more than the profit which we were looking at. kind of equal to the profit, तो वो पूरा मार्जिन स्टक होने वाला बात लग रहा था मेरे को, तो इसलिए मैं छोड़ दिया अभी के लिए। Probably I thought कि 1-2 दिन बाद थोड़ा जैन फ्यूचर का लिक्विडिटी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, पर शायद ट्रेड भी निकल जाए, ये भी हो सकता है। एक्चुअली अभी देखो मैं क्या मोहित, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो रहता है, मैं इंडेक्सेस में या जो हाईली लिक्विड स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, राइट, रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया,
ये स्टॉक्स में मैं इमीडिएटली कर लेता हूं जब एक्सपायरी शुरू हो रही होती है उससे 1-2 दिन पहले। एनी स्टॉक विच इज नॉट इन दैट लिक्विड कैटेगरी फॉर मी, मैं उसको प्रेफरेंस देता हूं 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद करो, क्योंकि ट्रेन तो निकली नहीं जा रही है और हमें सारे स्टॉक्स मिलेंगे भी नहीं। इंडेक्स इज द बेस्ट टाइम प्लेस टू डू, क्योंकि उसमें आपकी लिक्विडिटी सबसे बेस्ट है। इवन फिन निफ्टी में इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी में। आई वाज ट्राइंग विद फिन निफ्टी एज वेल, मतलब पिछले 6 महीने से मैं सिर्फ एक ट्रेड उसमें लगा पाया हूं, बिकॉज वहां पर डिफरेंस बिड और आस्क में इतना ज्यादा था कि मतलब 100-150 पॉइंट्स का डिफरेंस है, आप ट्रेड लगा ही नहीं सकते हो। हेलो यस जयेश। यस सर, सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो हम इसको जनवरी को सेल करके फरवरी को भी बाय कर सकते हैं सर। मैंने अभी देखा तो उसमें ऑलमोस्ट 98 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है दोनों फ्यूचर्स में, और लिक्विडिटी भी अच्छी है सर। आप बिल्कुल कर सकते हो, देयर इज नो चैलेंज इन दैट। निफ्टी में सर, और ये इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर होने के कारण हम उसको लास्ट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इसको तो फाइनली कैश में ही सेटल होना है, जनवरी फ्यूचर एंड फरवरी फ्यूचर सर। अगर आप इसको करते हो विच इज अ वेरी गुड ट्रेड आई वुड से, बट चैलेंज क्या आएगा, यहां पर भी आप 50 पॉइंट के लिए ही काम कर रहे हो। ओके 50 से 60 पॉइंट, बिकॉज अब आपने क्या किया, आपने 2 महीने का टाइम लगा दिया ओके इस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। ओके सर, रिटर्न तो उतना ही हो गया ना सर। यस यस समझने की बात ये कि मैं ये बना सकता हूं, बट इसमें मेरा इम्पैक्ट क्या होगा, मेरा रिटर्न तो उतना ही हो गया ना, मेरा रिटर्न तो इंक्रीज नहीं हुआ। नहीं सर नहीं हुआ, सही। तो ओके जब सर, मुझे मालूम है कि रिटर्न इंक्रीज नहीं हो रहा तो मैं बड़ा रिस्क क्यों लूं, मैं पास वाला लेता हूं ना। यस अब मैं इस आर्बिट्रेज के इसमें बाद में एक और जैसे चीज बताता हूँ। यस सर, ये जैसे अभी अभी पोजीशन क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें प्रॉफिट एक्सपायरी नजदीक आएगी तभी आएगा ना, उससे पहले तो नहीं आएगा ना? सर, आप मैं ये बता सकता हूँ कि जो ट्रेड मैंने थर्सडे को लगाई थी, ठीक है, उस ट्रेड में 2% ऑफ माय कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, 2 क्या 3% चल रहा है अभी। ओके, जो मैक्स प्रॉफिट है वो एक्सपायरी के आसपास होगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट इससे चाहिए नहीं होता, 10 से 15%, 20% प्रॉफिट मिल जाए एक ट्रेड से, और जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस एक बार देख के लगा देना है, राइट। आपको देखिए कैलकुलेशन अब स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आपने देखा कि भाई इसमें 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 क्या डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस इतने ज्यादा है, गो अहेड एंड डू इट। और स्टॉक से ज्यादा आई वुड ऑलवेज रिकमेंड डू इट इन इंडेक्सेस, they are the best thing to do arbitrage। arbitrage सबसे ज्यादा, yes, इसमें जो आपने बताया बेसिक क्राइटेरिया हमको यही मेंटेन करना है कि स्पॉट एंड करंट एक्सपायरी के बीच में 1% के आसपास का डिफरेंस हो, एंड करंट फ्यूचर एंड नेक्स्ट फ्यूचर के बीच में 0.5% का डिफरेंस हो। ये क्राइटेरिया हमको मेंटेन करना है, राइट? सर ये नहीं है, मैं फिर से बताता हूं। क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी करंट एक्सपायरी है और जो आपका स्पॉट है, उसके बीच में अगर आपका डिफरेंस 1% से ज्यादा होता है, राइट, और ओके करंट एक्सपायरी टू नेक्स्ट एक्सपायरी के बीच में अगर आपका जो डिफरेंस है वो 0.5% से जितना ज्यादा कम होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ ओके जैसा कि हम लोगों ने एक्सेल में जब देखा था, राइट, जब हमने उसको एक्सेल में देखा था तो हमने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कि ओबराय रियलिटी का जो करंट फ्यूचर है, राइट, ये हमारे को 1.6% का डिफरेंस दे रहा है, और जब मैं इसको नेक्स्ट पर लेकर के जाता हूं और मैं यहां पर इसको देखता हूं तो मुझे 1.83, विच मीन्स कि अगर मैं करंट से इसका डिफरेंस देखूंगा तो इट इज हार्डली 0.1 और 0.2, करेक्ट।
जब वो 0.1 और 0.2 का डिफरेंस मुझे यहाँ मिल रहा है, दैट मीन्स कि इट्स अ गुड डील टू एग्जीक्यूट प्रोवाइडेड इट हैज गुड लिक्विडिटी फॉर द जनवरी 1। जनवरी में जब हम बिड लगाएंगे तो हम सिर्फ लोअर साइड का लगाएंगे, उसके बाद में हम ऊपर साइड पर इसमें ट्रेड करेंगे। दिसंबर वाला है उसके बाद में करेंगे। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है। अब इसके अलावा इन स्टॉक्स में जब ये आर्बिट्रेज करते हैं तो मैं कभी कभी व्हाट आई डू, मतलब जो इसके लिए मैंने स्पेयर पैसा छोड़ा हुआ है वो तो तब के लिए छोड़ा है ना कि जब कुछ ये गड़बड़ करेगा तब मैं देखूंगा, करेक्ट। तो देन व्हाट आई डू, मैं ओबेरॉय रियल्टी ही खोलता हूं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं इसका वनडे का चार्ट देखता हूं, ठीक है। मुझको एटीआर वगैरह कुछ भी नहीं देखना होता, मैं वो कोई भी दिमाग नहीं लगाता हूं, और मैं इसमें सेंट्रल पिवट रेंज लगा करके मॉर्निंग में उसका 10 मिनट का चार्ट खोलूंगा। मुझको एक मूवमेंट पता लग जाता है कि भाई सीपीआर कितनी नैरो है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि सीपीआर नैरो है, अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूं और प्राइस बैंड ब्लास्ट किया है यहां पर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीपीआर के नीचे का, फॉर एग्जांपल ये 877 है, मैं 870 या 860 की कोई भी पुट और सेल कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास उतना मार्जिन तो रखा है। वो पुट मुझको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देगी इसके साथ में, को भी ऐड करते हैं। इसमें तो लिक्विडिटी ही नहीं थी अभी तो, बट जब लिक्विडिटी आएगी तो यू विल हैव सम गुड दिस थिंग। इन स्टॉक्स में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आपको लिक्विडिटी अक्सर नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए 880 की भी कोई बेचेगा तो मैं एटीएम तो नहीं सेल करने वाला हूं, राइट, बिकॉज एटीएम सेल करने का मतलब है यू आर एट ए हाई रिस्क। एटीएम से ऊपर है वो भी बेसिकली। तो अगर कोई करेगा तो मतलब जब लिक्विडिटी होती है तो यू मेक सम एडिशनल पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ योर दिस करंट ट्रेड, बट उसका रूल मेरा क्लियर है, सीपीआर के ऊपर है। अगर सीपीआर के ऊपर है, बैंड के साथ में है, आई विल गो अहेड, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा मैं उसमें करूंगा। मैं 5 मिनट्स तक मैं जाता हूं इसके लिए। देख लिया भाई बैंड ब्लास्ट है, सीपीआर नैरो है, ऊपर है। अगर मैंने देख लिया कि सीपीआर ब्रॉड है, राइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और इवन समटाइम इससे भी ब्रॉड मिलता है हम लोगों को, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं यहां पर स्ट्रैडल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि ब्रॉड सीपीआर रिजेंबल्स की मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी, एक डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस कम है। तो आपके पास में इंट्राडे 5 SMA को यूज करके आप यहां पर ट्रेड और भी ले सकते हो, जो कि उस आर्बिट्रेज के साथ साथ ट्रेड चल रही है। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आप एक ही ट्रेड में उतना फोकस्ड प्लान कर रहे हो, राइट, क्योंकि ट्रेड लेना बहुत आसान है बट ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस आर्बिट्रेज। अगर इस पर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदर क्वेरीज? सचिन सचिन सर, एकदम हाँ मोहित भाई, लेमैन वाला क्वेश्चन है मेरा। मतलब ये बिल्कुल। नोन फैक्ट है राइट कि आर्बिट्रेज क्रिएट होता है, एंड देयर आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स जिन जो एफआईज या ऑपरेटर्स के पास है, राइट। एंड कई बारी वी also see that operators they start building their positions 40 to 50 days ahead of the expiry, and Correct. they purposefully create this gap. So I mean since you've been doing it, तो कभी आपको ऐसा मतलब मेरा तो बिल्कुल लेमैन वाला क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहला ही ट्रेड डाला है वो भारतीय एयरटेल का,
तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बस इतना है कि जब हमसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो इस आर्बिट्रेज को पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी रिटेल के लिए कितना अपॉर्चुनिटी स्कोप है इसमें? मतलब इंडेक्स में तो आपने बस बोला, बट स्टॉक्स में कितना मिलेगा ये? आपको ये बोल सकता हूँ, मेरा मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा स्कैनर है जो कि आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के पीछे का ये डेटा दे सकता है, राइट? ओनली यू टेक द लिक्विड स्टॉक्स, बिकॉज ये सब में बनता है और सब में बनाया जाता है गैप, ठीक है? तो आप उसमें आप आसानी से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरा स्टॉक्स में जो परव्यू रहता है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें ये बनता है वो लिक्विड नहीं होते हैं, राइट? तो वहां पर हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसको मैं जो देखता हूं, मैं एक लिमिटेड स्टॉक्स में देखता हूं। ओबेरॉय रियलिटी फॉर एग्जांपल, करंट मंथ में आपको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, बट नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलेगी। या जो जैसे आप एक सेक्टर रोटेशन ग्राफ भेजते हो, राइट? अगर आप उसमें से जो लीडिंग वाला ग्रुप होता है, अगर उसके टॉप 5 आप शेयर्स लेते हो, तो उसमें ये अच्छे चांसेस होते हैं कि हमें आर्बिट्राज अच्छी मिलती है। एक बारी आप HCL में देखेंगे अभी, क्योंकि वो HCL इज स्टिल अ बेटर देन ओबेरॉय इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो भाव कॉपी से उस दिन मैंने जो शेयर किया था उसमें वन ऑफ द बेस्ट, आपने वो बहुत अच्छा निकाला था, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था और वो डिस्काउंट में था। हाँ मतलब यहाँ ये पे यहाँ पर अगर हम दिसंबर टू देखते हैं तो जनवरी हमारे नेगेटिव था। हाँ, नेगेटिव था, तो ये तो हमारे लिए और भी पॉजिटिव सिनेरियो है। बट द ओनली चैलेंज इज कि इसके जनवरी में लिक्विडिटी नहीं थी। करेक्ट। दूसरा जो मुझे चैलेंज अब आ रहा है, जैसे उस दिन तो फिर भी हमारे लिए डिफरेंस ज्यादा था, बट इफ यू सी दिसंबर फ्यूचर का जो डिफरेंस है फ्रॉम स्पॉट, स्पॉट तो 1.5 रुपए गिरा है, बट दिसंबर फ्यूचर 3.5 रुपए गिरा है, 3.5 रुपीज। हाँ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था। तो मूव मतलब कम तो हुआ, वो अपॉर्चुनिटी हमारे फेवर में ही गई है अगर कोई पहले एंटर कर गया। हाँ, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमको जब भी इसकी ट्रेड लगानी होती है किसी भी स्टॉक में जिसकी लिक्विडिटी ओके है या मीडियम है, हमें दिसंबर नहीं छूना है। प्राइस देख लेंगे, सबसे पहले इसमें लोअर साइड पे एंट्री करनी है। और एक्चुअली ये हम आप जब ऑफिस का काम कर रहे होते हैं ना, तब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करेक्ट हमारे सर। पास वो इतना फोकस नहीं होता है। जॉबर है ना, उनका जॉबर वो 10-50 5 पैसे मेरे बिट से ऊपर करता है ज्यादा बार, तो वो जॉबर से फाइट करना पड़ता है इसमें। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जॉबर का काम ही वही है। उसने जैसे ही देखा अच्छा बिड आ गया, उसका 5 पैसे ऊपर की लगा देगा। आप फिर 5 पैसे ऊपर की लगाओगे, वो फिर लगा देगा। तो इसमें मेरे को भी ये चैलेंज आता है, इसलिए मेरा जो सबसे मतलब आई वुड से मेरा जो मेजॉरिटी क्वांटिटी जाता है वो इंडेक्स में जाता है। ओके। और ये आर्बिट्रेज करने की कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कमोडिटी में और करेंसी में भी, बट मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाता हूं, तो मैं इसलिए उसको करता नहीं हूं। इंडिया में कमोडिटी फ्यूचर्स पे ही चलती है, स्पॉट नहीं है, तो कई बार उसमें ट्रैप ज्यादा होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरा, वहां पर आपका मार्जिन का बेनिफिट नहीं होता है, तो उसको ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि आप जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात की जाती है, आपको वो मिलता नहीं है। करेक्ट करेक्ट सर। और इसको सिंथेटिक नहीं कर सकते लिक्विडिटी की वजह से। और इसमें एक अनदर इशू तो नहीं, बट आपका टर्नओवर इंक्रीज बहुत होता है फ्यूचर्स पे, ब्रोकरेज एंड टर्नओवर। एक और आर्बिट्राज बताता हूं मैं आपको। इसके लिए ना मैं इसमें ऑप्स्ट्रा में चलते हैं, सॉरी ऑप्स्ट्रा या कैसे बोला Before तो we उसमें कह move on, लीजिए। can you please repeat that HCL January scenario, sir? सॉरी सुधा जी, That HCL January liquidity you were checking, no? How do you check that? And you just said that you'll be looking at the lowest price. Can you please repeat that? what I was saying, for example, in this is the HCL bid offer window, right? What happens, there are jobbers which keeps on changing the bid price. If you place any bid price of the current bid price 0.5 above, the tick above, what they will do, they will just place 0.5 tick above,
so that they get the top on the list. Okay. Okay. So we need to fight with them to get our this order first executed, and then we will go for the liquid one. Okay. So always we have to place the buy order first for the future one. Once Yes, it gets with executed, the then bid only on the we will lower go to side. the sell. Okay. Yes, with a bid on the lower side, so we have lesser slippage on the points. Okay. Okay. See, we need to remember one thing. मतलब हिंदी में मैं कहता हूँ कि मैं मार्केट से कभी भी ये बात नहीं करता हूँ मिस्टर मार्केट आप कैसे हो क्या हो, ये मेरे हिसाब से दोगे तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा. If you are giving at my point, I will go ahead and take it. If it is not, then go to hell. I am not worried about you. I will get hundreds of opportunities. The time you start talking to it like, okay, now what you are going to do, how it is going to happen, how do I manage it? The time that fear comes in, you are not going to be able to place a trade. If this comes, it's okay. नहीं आता कोई बात नहीं, मेरा पैसा मेरे पास है ना. I have my money with me. As long as I am not gaining, but I am not losing as well. Okay. Is there any better time frame that this arbitrage has to be taken? For example, today November month end expiry is done, but still we are in the month of November. So do we have to take it now for the December, or we after starting of the December first? No, you can take it on any given date. You just need to identify the right trade. Okay. Sometimes Why you I will am find a asking very this good question? trade at the mid of the December. I can say that. Mid of the month, you can get Because, many yeah. good trades. Okay, many good trades, and as well as we can see some liquidity in future January future as well, right? Absolutely. Yeah. Okay. Thank you, sir. इसी के साथ में एक और आर्बिट्राज बनती है, that is with the options, with the ITM options. जनरली हम सबका माइंडसेट ये रहता है कि जब भी हम ITM ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास में उस ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू होती है या जो थीटा हम बोलते हैं कि भाई ITM ऑप्शंस तो प्योर फ्यूचर के बराबर होता है, बट कभी कभी ना ITM ऑप्शंस भी डिस्काउंट में चलता है. स्पेसिफिक ITM कैन बी इन डिस्काउंट. यहाँ पर तो वो आपको 50-50 वाले दिखा रहा है, बट कई बार काफी अच्छे ऑप्शंस भी आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं. अभी जैसे 13 पॉइंट का डिफरेंस दिखा रहा है, किसी में 36 पॉइंट का दिखा रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 450 और ऑड फिगर्स. दीज when you go for these round figures like 70,500, 600, 700, or on the put side, we also get this arbitrage. So for example, I got an opportunity where I could see that yes, I found this particular at a good discount, right? यहाँ तो लिक्विडिटी नहीं हुआ होगा, ट्रेड नहीं हुआ, इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिख रहा है, ये डिफरेंस दिखा रहा है 101. बट अगर ट्रेड होगा तो sometimes you will find a difference of 20, 40, 60 points here. There you can go ahead and buy this option because on the expiry it will match with the future, with the spot, and at the same time you can sell the future. When you do this, then also your margin requirement are very less, but you can get the premium which is in the future and the price which is in this option. But here you will get require M2M when future breaks this particular price. So that's the risk area. And generally this trade is not being done for the I would say for the complete month. This trade is generally being done for 2 to 3 days because option का pricing 2 से 4 दिनों में generally settle हो जाता है. वो बात अलग है that it is not settled. For example, if I talk about 19,000 PE for December, if I take this, it's still at 445 and it was a pretty liquid one. So from 445, and if we take the price from spot, right, this should have been at least 550. So you can always do this kind of arbitrage when you are planning any of the trades.
it's only about just invoking our thought process. And I would recommend the more you do with the index, the more safer you are than the stocks, because there the movement is also very high. And this kind of trades are also commonly found with the stocks. The way we found the Sobra Realty, similar trades we have in stocks as well. The only difference comes is the liquidity. And this you can do for the same month, even sometimes same week for indexes. So there are two types of arbitrage which I generally do. One is future to future, which means I am playing with the time, and the second one with the options. और अगर ट्रेड रिवर्स जाता है तो भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए. I think so somebody was asking question and I said Yeah, actually what you are just about to ask the same thing. Now supposing now for example we have taken a future to future. Now on day one, say like just after this one, the one thing what you have told is on a Monday, first Monday, if you take this particular trade, one buy and sell. Sell is in the nearest month and buy of the next month. If we enter into that one, then how many, number one as query is how many days and what is the basis on which we have to continue with this particular thing? Because as the delta increases, that means the arbitrage also value will increase. But if it goes against it, then how do we adjust it? Actually, how do you adjust it? Sir, the future one, there is no. So I think so. It's so basically, if you ask me, when I am placing this particular trade, I am having no risk of any option Greeks, because this is pure future trade. I am not having any options here, first of all. Yeah. Right? Now, when I'm having only future, right, the chances are only that the gap between the December future and Jan future may increase. And at that point of time, my simple adjustment rate is double the quantity. Double the quantity which you have purchased. And I'm ready to do this at least 3 times in a month. That means that now you are having 2 lots, one sell and one buy. That again will become 2 buy and 2 sell. Like that will keep increasing. No, for example, you said right. For example, you have one pair of this December and January. Yeah. Right. You initiated with this, and you found like the difference has grown by 4 points or 5 points. I'm taking the case of the Sobra Realty. I will further add one more pair. So I will have now 2 quantity each. Right. Now let's say the FII is played and they again added 2 more lots. They again increase the gap by 4 or 5 points. Okay. What I will do, I will buy or sell again the total 4 more lots, which means 2 buy, 2 sell. So my total quantity will become 4. And if they do again, then I will go for 8. And then after that, I will wait. Because with that, I have increased my probability of profit multifold. Okay. वो मंथ जब शुरू हो जाता है तो वो ये करते हैं, उसे होता है 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए. तो हमारे आपके लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी लाइव सिस्टम व्हिच इज डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. सर इसमें रिजल्ट या इवेंट का कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? वो हमारे फेवर में अनफेवरेबल जाता है? कुछ भी नहीं है, किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है. It will be event will be impacting, the price will be changing accordingly. Any event which will happen will be impacting both simultaneously. So the arbitrage amount खाली ये हो सकता है कि जो लिक्विडिटी है आपका, लिक्विडिटी की वजह से आपको जनवरी वाले में मूवमेंट थोड़ा स्लो दिखेगा कि आपको लग रहा है कि अरे दिसंबर वाला मान लो 2% बढ़ गया है या वो 20 रुपए बढ़ गया है, ये अभी 15 रुपए बढ़ा है, बट जब शाम को सेटलमेंट प्राइस आएगा तो एडजस्टेड दिखेगा आपको. ओके. एंड जनवरी का आपको वो डिफरेंस समझना है कि आपका बिना में भी क्या वैसा डिफरेंस है, प्लीज. एंड क्वेश्चन एक और ये था कि
हाँ, जनवरी का जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं फार मंथ का, उसमें आप ये भी चेक करते हैं कि डिविडेंड इंक्लूडेड तो नहीं है, फैक्टर्ड इन तो नहीं है। मोहित, मैं कुछ भी नहीं चेक करता हूँ। मेरा बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल रहता है इसमें कि अगर मेरा डिफरेंस कम है, अगर डिविडेंड भी इंक्लूसिव है, तो एंड में क्या होगा, प्राइस में डिफरेंस तो आएगा ना। समझो, ये जो प्राइस है, राइट, ये प्राइस तो उस हर चीज को फैक्टर करके बैठा है ना अपने पास। करेक्ट। मेरे को तो वो गैप को ही पकड़ना है ना कि भाई व्हाट इज दैट गैप। अगर मुझे दिख रहा है कि गैप इज गुड, गो अहेड एंड डू इट। यप। गैप नहीं है, डोंट डू इट। गैप ज्यादा इंक्रीज है, मत करो। एडजस्टमेंट तो तब करते हैं ना जब ट्रैप हो जाते हैं। अगर ट्रैप नहीं है तो चलने दो। ओके। क्योंकि इसमें है क्या कि आपने दोनों चीजें बाय और एक ही इंस्ट्रूमेंट में, आप तो बेसिकली जो गैप है उसके साथ प्ले कर रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग विद एनीथिंग एल्स। आपको ना उसके इंटरेस्ट रेट से मतलब है, ना आपको उसका किसी भी डिविडेंड से मतलब है, ना किसी न्यूज से मतलब है, ना उनके रिजल्ट से मतलब है, कुछ भी नहीं मतलब है। वी आर जस्ट डायरेक्टली टॉकिंग टू द प्राइस। करेक्ट करेक्ट। मैं बस सोच रहा था क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूं कि इसका जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है नोशनल लॉस, जो स्क्रीन पे दिखता है, राइट, वो लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज कई बार क्या किया जाता है, ये स्टॉक्स में ज्यादा होता है, इंडाइसेस में बहुत ही रेयर मिलेगा आपको, कि दिसंबर के फ्यूचर को बढ़ा दिया, जनवरी को रोक दिया। अभी हमने एचसीएल में भी देखा है, समटाइम्स ये किया जाता है। और जब ये होता है तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि फर्दर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने की। बिकॉज दिसंबर को तो जाकर के मिलना ही है स्पॉट से, ये कब तक डिस्काउंट में रह जाएगा। करेक्ट। अभी वो एक्चुअल भाग भी रहना शायद, इसलिए दिसंबर और ऊपर है। दूसरी चीज ये है, बहुत ही सिंपल सी बात कहता हूं, अगर मैंने 11 महीने ट्रेड कर रहा हूं, मैं सिर्फ निफ्टी की बात करता हूं, 11 में से मैंने 12 महीने में ट्रेड कर रहा हूं, 12 में से मैंने 11 महीने प्रॉफिट उठा लिया, 1 महीने मैंने लॉस उठा भी लिया, तो क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। Sir, even in the case of HCL also, it was showing for 1 day, but after actually we will be on we'll be holding the trade till next month expiry, right? So in between that may get adjusted also. Absolutely, it will be. As you said, that will be notional देखिए, loss. That's all. Absolutely. Majority times it will be notional loss, and retailers, when they do not understand the logic of the trade, they get into it and then they make losses. ना फिर एक काम करते हैं, देखो 4:15 हो गया है, 4:15 ऑलरेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। बिफोर वी जंप ऑन द फ्यूचर वन और ट्रेड प्लान, वो हम लोग नेक्स्ट के लिए रखते हैं। लेट मी ओपन एक लास्ट समथिंग क्वेश्चन फॉर है यू मेरा। गाइस। यस सर, ये इसमें प्रॉफिट कितने पॉइंट का है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार थोड़ा वापस बता दो। बिल्कुल बताते हैं आपको। मैं जरा निफ्टी वाला, निफ्टी वाला। मैं निफ्टी वाला बता देता हूँ। मैं एक्सेल पर ले आता हूँ तो कम से कम आपको समझ में आएगा। सर बीच में अगर वो टारगेट मीट हो गया तो हम निकल भी सकते हैं सर। सर, प्रॉफिट बुकिंग तो आपके हाथ में है ना। अगर आपको लग रहा है कि मीट हो गया तो हम क्यों उसको एंड तक कैरी करेंगे। ओके सर अब मैं एवरेजिंग निफ्टी का के लिए, लेता हूँ अभी। सर एक एवरेजिंग एक के करके लिए करते हैं। जैसे सर एवरेजिंग के लिए जैसे हम कंटिन्यूअसली तो इसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो व्हेन इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू एवरेज इट। देखिए ऐसा है, आप किस बहुत सारे सिस्टम है जहां पर आपके पास अलर्ट मैकेनिज्म है, राइट। इफ यू गो फॉर सेंसिबल और सच काइंड ऑफ टूल्स, आपकी पोजीशन के साथ में आपके पास में अलर्ट मैकेनिज्म रहता है कि आप प्रॉफिट कितना हुआ तो आप अलर्ट कर लगा दो, या लॉस कितना है तो आप अलर्ट लगा दो। अब आपको दिख रहा है कि भाई लॉस अगर आ रहा है
आपने देख लिया कि एक ट्रेड में सिंगल लॉट में अगर मुझे 4000 का लॉस आ रहा है, विच मीन्स कि ऑपरेटर हैज प्लेड 4 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स, राइट, मेरा एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर करना है, तो वो आपको अलर्ट भेज देगा आपके नंबर पर, ईमेल पर और एप्लीकेशन पर। आप सिस्टम में जाओ, अपना उसको आप ऑपरेट कर लो, जो भी आपको उसमें करना है। दैट इज सर 2 times द पोजीशन जो आपने अभी बताया था। अब देखिए, इसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है। ओके सर। अभी हम बात करते हैं निफ्टी की, राइट। निफ्टी में अगर हम दिसंबर से बात करते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम फिगर्स हियर। दिसंबर फ्यूचर में अभी डिफरेंस है 133 पॉइंट्स और यहाँ का डिफरेंस है 240 पॉइंट्स, विच मीन्स 107 पॉइंट्स डिफरेंस। अगर मैं वैसे डिफरेंस की बात करूंगा तो हमारे पास जो डिफरेंस बन के आ रहा है, दिस माइनस दिस, विच इज 26 पॉइंट्स। एंड इफ आई टेक द वर्स्ट सिनारियो, दिस इनटू 50 फॉर 1300 रुपीज, जिसमें से मैं 300 रुपए का खर्चा निकाल दूंगा, मैं सिर्फ 1000 रुपए के लिए आर्बिट्रेज नहीं करूंगा, which means मैं फॉर दिस 1000 अभी ये आर्बिट्रेज क्रिएट नहीं करूंगा, राइट। दिस डिवाइडेड बाय दिस, करेक्ट। मैं इसके लिए ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे को यहां पर जो डिफरेंस चाहिए होता है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। एटलीस्ट ये डिफरेंस मुझे 50 पॉइंट का हो जाए, 45 पॉइंट का हो जाए, कि मैं कम से कम 1% यहां पर बना के ला रहा हूं जिसके ऊपर मैं एक ट्रेड कर रहा हूं। इन दी एंड व्हाट विल हैपन, वो एक सेकंड सिनेरियो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट जो मुझे गैप लेता हूं ना, कि भाई मिनिमम मुझे एक अमाउंट ऐसा आना चाहिए कि जिस पर अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, यार ये पैसे में फायदा नहीं हुआ। अब जब मैंने ये ट्रेड लिया था, मेरा यहां पर डिफरेंस था 160 का और यहां पर डिफरेंस था 80-85 का। मेरा रैशनल मिल रहा था 80, मेरे को 45 ये दिख रहा, नॉट दिस, मेरे लिए तो ज्यादा ही था ये, राइट। मेरे को मिनिमम 4000 का मालूम है कि 4000 मिलेगा मुझे। अब अगर उसके साथ में भी प्राइसिंग में कहीं पर भी झोलझाल होगा, आई विल गेट एडिशनल पॉइंट्स। अब एक लॉट पर जो मैं 25,000 रुपए लगा रहा हूँ, 5,000 रुपए उठा लूंगा, मुझको क्या चाहिए? इसमें मेरे को एमटीएम देना नहीं, तो मैंने एमटीएम को फैक्टर ही नहीं करना है मेरे केस में। तो मैंने 17% रुपीज उठा लेने, बिकॉज निफ्टी में एमटीएम की जरूरत पड़ती ही नहीं कभी भी, पिछले 2 साल में तो नहीं पड़ी है, राइट। हेलो, am I audible? हाँ सर, अंडरस्टूड सर। यस सर, ऑडिबल। इंपॉर्टेंट इज गैप जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया है हमारे लिए, ट्रेड करना उतना ही सेफ है। में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं और लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, और वो टाइम्स हमें ढूंढने पड़ते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट वर्किंग ऑन टिक टू टिक डेटा, वन एप्लीकेशन आई एम ट्राइंग आउट, विच वी आर गेटिंग इट कस्टम डेवलप्ड। अगर उसमें ये मेरे को फैसिलिटी बन जाती है कि वो इतना डेटा मैनेज कर लेता है, तो जितने भी हमारे लिक्विड पेयर्स हैं उनके लिए ये डेटा हमें डे टू डे मिलता रहेगा। आई एम नॉट गोइंग विद द ऑप्शंस फर्स्ट, ओनली विद द फ्यूचर। और वो सिस्टम में वो फैसिलिटी भी आ जाएगी विद टाइम, कि वो जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा, वो अगर लिक्विडिटी होगी तो वो ट्रेड भी लगा देगा हमारे लिए। जो आपके जॉबर्स का काम होता है कि उन्होंने देखा कि भाई इतना मूवमेंट है, वो उसके हिसाब से वो करते रहते हैं, राइट। वो स्केड्यूल्स चलते रहते हैं, वो उसी से काम चल रहा है। हम भी वही चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस आर्बिट्रेज में आपको कई बार ऐसा, मतलब आई कैन से दिन में मिनिमम 5 स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि उनके स्पॉट, फ्यूचर और दिसंबर में डिफरेंस होता है बाय 4 to 10%, सॉरी 4 to 10 पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, और उसको विद इन मिनट्स, विद इन 10 to 15 मिनट्स, 1 आवर कंज्यूम कर दिया जाता है, तो डिफरेंस गैप हटा दिया जाता है। वो बनाया ही इसीलिए जाता है to generate those arbitrage opportunities. We are trying to trap them
क्योंकि अगर वो सिस्टम से होने लगता है तो हमारी लाइफ बहुत आसान है, हमें कुछ भी नहीं करना, पैसा डाल के छोड़ दो, अपने आप काम करता रहेगा, राइट। अब मैं लेट्स गो बैक टू द third, I would say the last one which I wanted to cover, which I generally do every day. People do straddles, but I don't do straddles. I do this. And I'm just going to show you the results so that you guys understand that what this particular thing can help you. तो मैं इसके, ये स्टॉक मॉक है, ये 15 क्रेडिट फ्री देता है आपके दिन के। तो किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना होता है तो मैं इस पे आकर के एक बार देख लेता हूं, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या कौन सी पोजीशन बना रहे हैं, ये कह रहा है कि एटीएम बनाना है, एटीएम का एक परसेंटेज ले सकते हो कि इतने परसेंट के डिफरेंस पर बनाना है, क्लोजेस्ट प्रीमियम अगर प्रीमियम के बेसिस पर करना है, या क्लोजिंग प्राइस बेस्ड ऑन closest premium based on the straddle premium अगर कुछ करना है, which index you want to do, right, which segment you want to try it out, futures or options, call or put, right, this you can change because this is for adding the positions. I have just taken a simple butterfly here, and you can do for your any of these strategies. You remove all this, you add as per your custom strategy, it will give you the custom strategy, and it will give you free of cost 1 month result for it. And one thing which I would like to highlight to everyone, everyone must be knowing that markets remain sideways for 70 to 80% of the times. 20% times they are trending, which means intraday basis पर 20% days ऐसे होते हैं, out of 22 days I would say 4 or 5 days when markets are trending, and remaining 15 days market is standard, I would say, which is not going to be a good trending day. अब वहां पर what happens, like option sellers, what they do, they trade with straddles, strangles, right, adjust them. What I do, I prefer iron fly. So what I would do, I would sell ATM call, ATM put, and I will buy to 500 point away call and puts, and this is my consistent. I'm even working on this as well. I may automate this, and the time I click a button that okay 500 point difference, it iron butterfly create, system will automatically create. We take only weekly options, we don't take monthly options here. No SLs, no target profit. मेरा रूल क्लियर है, मैं 916 पर एंटर करूंगा और 15, 28, 15, 27 की तरफ मैं एग्जिट करूंगा, मैं उसके पहले नहीं करता हूं। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, 1 महीने का रिजल्ट हम लोग इससे देखते हैं। आई हैव जस्ट क्लिक द स्टार्ट टेस्ट। The estimated margin per lot per trade is around 76,000. इसको 80,000 मान लेते हैं कभी के लॉस के लिए भी, right? My everyday profit is my monthly profit is around 27,000, which is 35% of the profit of my invested capital. I invested 76,000. My profit is 27,000. Average profit I'm making around 1.71%. Maximum profit on a day is 7,051. Maximum loss in a day is 3,500. 13 winning, 8 losing streaks. Doesn't make much difference for the rest of the things. And this is something which I am doing very often. It is not very often means every day almost. अगर मुझे कोई डे लग रहा है कि आज बहुत ट्रेंडिंग है, राइट, तब मैं इसको नहीं करता हूं, और अगर मैंने तब भी किया है और डे ट्रेंड होने लग रहा है तो मैं अपने 5 SMA के साथ में थोड़ा सा ट्विकिंग कर लेता हूं, एक आधा एक्स्ट्रा सेल कर दिया या बाय कर लिया टू मिटिगेट दिस पर्टिकुलर लॉस एज वेल। ये तो मैं आपको वो वनीला बता रहा हूं
कि आप कुछ मत करो, सिर्फ ये करके डाल दो, सुबह 9:16 पर आते ही देख लिया कि भाई मार्केट कहां पर खुल रही है, उसकी ट्रेड बना ली, बास्केट बना ली, एग्जीक्यूट इट। यू क्रिएटेड द बास्केट, एग्जीक्यूटेड इट, एंड आप ऑफिस में हो, ऑफिस में रहो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता है। 3:25 का अलार्म लगा लो अपने पास, 3:25 पर आओ, देखो क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, फॉरगेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जिट इट। ये सर निफ्टी निफ्टी में में भी है या बैंक निफ्टी का है? एक एक करके बात करते हैं दोस्त। निफ्टी में, ये निफ्टी में होगा या बैंक निफ्टी में? ये बैंक निफ्टी का था, यू कैन डू सेम इन द निफ्टी एज वेल। तो मैं यहाँ पर निफ्टी उसमें चेंज कर कितना देता हूँ। डिफरेंस होगा सर? निफ्टी आई टेक डिफरेंस ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स, सेम कंडीशंस, बट मैं निफ्टी में करता नहीं, मैं मेजॉरिटी बैंक निफ्टी में करता हूँ, बिकॉज वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा अच्छी मिलती है, मूवमेंट अच्छा होता है। को 13,000 का प्रॉफिट है 72,000 के मार्जिन पर, विच इज 18%। आपका मैक्स एक दिन का प्रॉफिट 4676 है, मैक्स लॉस आपका 6523 है, राइट। एंड 13 डेज यू हैव वॉन, 8 डेज यू हैव लॉस्ट, फर्क नहीं पड़ता है, इन द एंड यू आर प्रॉफिटेबल। सर वेनेसडे थर्सडे भी और रिसेंट एक्सपायरी का ही लेता है क्या? हम इसमें सिर्फ रिसेंट एक्सपायरी टारगेट करते हैं, अगले महीने की एक्सपायरी को नहीं पकड़, अगले वीक की एक्सपायरी नहीं पकड़ते। थर्सडे आपको कुछ सेम भी दिमाग, सेम एक्सपायरी को भी उसी दिन भी यही करना है या नेक्स्ट वीक की थर्सडे को? आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, मैं सेम डे की कर देता हूँ। मेरा वीक फ्राइडे से ही चालू होता है। हाँ, जब मुझे स्ट्रैडल क्रिएट करनी होती है, या मैं सिर्फ 2 आवर स्ट्रैडल क्रिएट करता हूँ, जो कि 12:30 या 1:30 बजे क्रिएट होती है, डिपेंडिंग अपॉन माई डेटा अंडरस्टैंडिंग, वो मैं जरूर नेक्स्ट वीक की करता हूँ, बिकॉज प्रीमियम मुझे वहां पर ज्यादा मिलता है। बट सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि बिकॉज जब गामा ब्लास्ट होगा तो गामा ब्लास्ट इनका भी होता है, जब भी गामा ब्लास्ट होगा तो गामा ब्लास्ट इनका भी होता है। इसका जितनी तेजी से नहीं होगा, उससे ज्यादा तेज इनका होगा। क्योंकि एटीएम में मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन है। मॉर्निंग में मैंने किया तो मेरे को 70-80 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मिल जाता है, 60 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाता है, तो मेरे पास 120 पॉइंट का तो प्ले वैसे ही मिल जाता है। इसमें क्या होता है, ये मिल जाते हैं 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए पर। बट जब गामा ब्लास्ट होता है तो ये तो जब तक 120 वाला लेवल का क्रॉस करेगा, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होता है 20-30 पॉइंट, राइट। और जितनी एक्सपायरी नियर होती है गामा, उतना बढ़िया ब्लास्ट होता है। तो यहां पर मेरा रूल बहुत क्लियर है, आई विल एग्जिट ओनली एंड ओनली एट द टाइम विच आई हैव चूजन, नथिंग एल्स। और मैं किसी भी विक्स में करता हूं, मेरे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मालूम है। अब इसको जब हम आयरन फ्लाइज के एडजस्टमेंट पर आएंगे आगे की क्लासेस में, तब मैं बता दूंगा कि मैं इंट्राडे को एडजस्ट कैसे करता हूँ, राइट। कई बार शिफ्टिंग होती है, मैंने चार्ट देख लिया, मुझे लग गया कि अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो एक को हटा देते हैं, सो आई विल हैव एडिशनल एज ओवर देयर, राइट। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। बट अगर आप एक ऑफिस गोअर हो, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 9:16 पर आप प्लान करो और एग्जीक्यूट करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट है, इसमें आई डू वांट बीएन अ लॉट। 500 पॉइंट का डिफरेंस लेना है मेरे को। call and execute it, you will have all the results. वो ITM एक सिलेक्ट हो गया था, ये -500 का था, इसलिए वो 27 दिखा रहा था, बट इट इज 14,000 which is 23%.
and which is a decent amount. On 62 margin, if you are getting some 14,000 or 15,000 as a profit, it's, I would say, a good figure. लोग 5% नहीं निकाल पाते हैं, आप 23% की बात कर रहे हैं. बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए स्ट्रैटेजीज मैं भी बता सकता हूँ, मेथड्स मैं बता सकता हूँ. मेथड्स मैं बोलूंगा हजारों मेथड यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इतने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इतनी गाइडेंस होती हैं, राइट. द इम्पॉर्टेंट इज आपका टेस्ट क्या है, आप किसके साथ में कंफर्टेबल हो और आप किसके साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो, जिसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके रिस्क एपेटाइट से चलता हो, जिसको आपको लगता है कि आप उसको डेली फॉलो कर सकते हो, राइट. आप उसकी तरफ उसे एक्सेप्ट करो. बाकी नॉइज है मार्केट में, 500 स्ट्रेटजीज हैं, क्या मैं सारी करता हूं? नहीं. आई जस्ट डू 1 or 2 स्ट्रेटजीज इंट्राडे, आई जस्ट डू couple of strategies for positional, but मेरे को मालूम है मेरे को 80% ऑफ द स्ट्रेटजीज रिस्क फ्री करनी है, दैट्स इट. करेक्ट. So this is what I have for you for today. अगर किसी की कोई भी queries हैं, please ask. This particular one. Yes, Sudha ji. This particular setup, whatever you have just shown in stock market, that is every morning you do this in Bank Nifty and you just leave it, and at the end of the day you close it. That's what you're saying, right? I don't care about much profit and loss here if I am losing as well. But yes, as I am a trader as well, so what I do, I have my systems ready because I generally trade in BN only rather than Nifty. So what I do is I have my charts open. So the time I get to see, okay, the trade might get in risk. So I do some adjustments because being the professional trader, I would say, right? But अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है. At the end of the month, it is profitable as per the trial, whatever you have shown in stock market. Absolutely. Okay. Thank you, sir. मतलब the only challenge with the people is they try to go for, I would say, 100% profit or 70% profit, or the time they start their trading, they want like, okay, this is the only business where you can make money without any challenge. So there I would say, sorry, it does not happen that way. Just define it, what exactly you are looking at, plan your risk, and then you plan your trades. किसी के कहने पर ट्रेड मत लो, ट्रेड लो आप सिर्फ ये देख कर कि भाई मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा. आज मैंने आपको वो 2 ट्रेड्स ऐसे बताए हैं जिसमें आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं चाहिए क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, क्या चार्ट पे प्राइस बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. ये दोनों वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि टाइम बेस्ड हैं. 916 आना है आपको इंट्राडे वाले के लिए, और 328, 329, 327 डिपेंडिंग अपॉन योर थिंग्स आप एग्जिट करना है. अगर किसी रीजन से एग्जिट नहीं भी हो पाता है, मान लीजिए आप स्टक है, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या नेट नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं है, राइट, तो भी आपके लिए इतना बड़ा फियर नहीं है. नेक्स्ट डे आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. द ओनली थिंग इज रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज गैप भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बट पोजिशनली आप मैनेज कर सकते हो बिकॉज मार्केट डायरेक्शनल ऊपर नहीं जाता है, एक तो नीचे करेक्शन देगा ही देगा. पहली स्ट्रेटेजी जो थी वो प्योर आर्बिट्राज है, विच इज मेजॉरिटी रिस्क फ्री. मैं उसको इंडेक्स में बहुत ज्यादा करता हूं देन स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स में ढूंढना पड़ता है, लिक्विडिटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो मुझे करना अभी टू बी ट्रू पसंद नहीं है. आई एम लुकिंग फॉर अ सिस्टम टू बी डेवलप्ड which should do that for me. So these are the 2 things which we discussed today. I hope आप उन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेंगे, या आपकी जो भी क्वेरीज होंगे आप उसको डिस्कस करेंगे और आप ट्रेड कीजिए. इंपॉर्टेंट इज फियर को हटाइए, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए इस ट्रेड का बेनिफिट क्या है. जो ये मैंने 500 इसका बनाया है, राइट,
देयर आर मल्टीपल पेयर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। आप किसी पर भी पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पेयर ट्रेड करके देखिए, रिकॉर्ड करके देखिए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मार्जिन कितना लग रहा है, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसको चूज करना है, विच वन यू वांट टू चूज। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, विच एवर यू वांट यू कैन डू, बट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच वन इज एज पर योर टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन डूइंग एवरीथिंग। And I am also a learner. It is not like I know everything. I am just sharing what I have experienced in this market. Many times, even iron flies, I would say, out of, I would say, 12 months, 10 months, they are going to be profitable. 2 months will be the ones where you may have lesser profits. But the benefit you get, you have the everything positive, right? आपने स्ट्रैडल का भी मजा ले रहे हो और स्ट्रैडल के साथ में आप लॉन्ग का भी मजा ले रहे हो। अगर कोई ऐसा मूव आता है तो आपके पास प्रोटेक्शन भी है और जो हम स्ट्रैडल बना के बैठे हैं वो तुम्हें मिल ही रही है। बेस्ट टाइम फॉर एनी स्ट्रैडल टू लूज प्रीमियम इज 9:16 to 9:30 एंड आफ्टर दैट 2:30 to 3:30, सॉरी 3:50 या 3:30। तो अगर आप कोई भी स्ट्रैडल बनाते हो जो कि 2:30 बजे के बाद बनती है दिन में, वो बेस्ट टाइम होता है स्ट्रैडल के लिए प्रीमियम लूज करना। और मॉर्निंग का, फ्राइडेज को जनरली प्रीमियम नहीं लूज होता है। दिस इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग विच यू कैन कीप। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी हम लोग सेशंस कर रहे हैं, अगर आप लोग इसमें कुछ नोट्स बना सकते हो अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी लैंग्वेज में, राइट? बिकॉज हम जब डिस्कस करते हैं, क्वेरीज जब एड्रेस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम कर लेते हैं, राइट? हम डिस्कस कर लेते हैं, बट सब रिमेंबर नहीं रहती हैं। इंपॉर्टेंट ये है, नोट्स बनाइए और जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी लॉग बुक जरूर बनाइए कि मैंने ये ट्रेड लिया था, मैंने कहाँ गलती की, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना रिपीट करें। अदरवाइज आप गलती रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। थर्ड थिंग आई वुड से, मैंने डिफरेंस 500 पॉइंट्स का बताया, दिस इज नॉट कार्व्ड ऑन स्टोन। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म से कि आपको 500 रखना है, 600 रखना है, 300 रखना है। The nearer you are, the chances of losses are high. The far you are, the chances of losses are low. At least जो प्रीमियम आप ले रहे हो उतने दूर की तो आप डिफरेंस रखिए। So with this, if anyone has any other questions, we can discuss. सर वो फ्यूचर आर्बिट्रेज में अभी भी एक डाउट है मेरे को रिगार्डिंग दैट डिविडेंड। सर मैं अभी बताइए। हमने एक पोजीशन क्रिएट किया अभी, नेक्स्ट मंथ का सेल, मतलब दिसंबर का सेल और जनवरी का बाई। बाद में सोचो अगर किसमें? कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसका एक्स डिविडेंड डेट है नेक्स्ट मंथ का, मतलब जैन का, ठीक है। उस टाइम पे वो दिसंबर फ्यूचर में तो वो कंसिडर नहीं होगा ना? मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, जैसे जैसे डाउट मैं पूछ रहा हूँ। तो वो डिस्काउंट अगर जैन मंथ का फ्यूचर में अगर कंसिडर कर लिया तो फिर अपना ट्रेड उल्टा चला जाएगा ना? सर कितने महीने ऐसा होगा? नहीं, वो तो एक ही बार हो सकता है, एक बार या 2 बार, जो कंपनी अगर इंटरिम डिविडेंड दे दिया, मतलब ऐसा, या जो भी स्क्रिप्ट हम सेलेक्ट कर। अगर मेरे पास, मैंने अगर ट्रेड का जो डिफरेंस है वो कम लिया हुआ है, मैंने बोला अगर 0.5% से नीचे का मिलता है बेटर है, तो वहां पर मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, राइट? इवन तब भी मेरा प्रॉफिट होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एंट्री किस कंडीशन पर कर रहे हैं। जितनी लीनियंट हम कर देंगे उतना ही हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, जितना हम प्लान करेंगे उतना ही हमारे लिए इजी होगा। ओके, करेक्ट? या। तो यहां पर क्या होता है कि हमको जस्ट एंटर नहीं करना है कि एवरी ट्रेड इज माय ट्रेड। नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेड्स व्हिच आर फॉर मी। मैंने बोला ना, सारी ट्रेड मेरे लिए नहीं होती हैं। अगर मैं मनी कंट्रोल के पेपर पेज को भी फिर से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि वहां पर 50 ट्रेड है, बट क्या सारी ट्रेड मेरे लिए है? नहीं है। मुझे मालूम है कि ये लिक्विड स्टॉक नहीं है, नहीं करना मुझे उसमें, क्यों रिस्क लूं मैं अपने पैसे का? मेरे पास 50 और स्ट्रेटजी जिस पर मैं काम करता हूं।
राइट? मैं मंथली में कैलेंडर बनाता हूं, मैं मंथली में बैटमैन बनाता हूं, मैं मंथली में DBWI बनाता हूं, मैं मंथली में स्प्रेड्स बनाता हूं, मैं फ्यूचर हेज क्रिएट करता हूं, मगर सबके लिए कंडीशन अलग है। मैं डेली में आयरन फ्लाई बनाता हूं, मैं स्ट्रैडल्स भी क्रिएट करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द डे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं आयरन फ्लाई के सपोर्ट में क्रिएट करता हूं। इवन मैं वेडनेसडे की अलग ट्रेड बनाता हूं, मैं थर्सडे की अलग ट्रेड बनाता हूं। हर दिन की ट्रेड अलग है सर। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या चाहिए, और ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। मैं आपको बता दूंगा, आप उसको ले लोगे, और आपको मैं जितनी ज्यादा चीजें बता दूंगा आप उतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं आपको ट्रेड देने आया हूं या मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने आया हूं। स्ट्रैटेजी में 500 बता दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट दीज टू स्ट्रैटेजीज व्हिच आई हैव गिवन यू टुडे, अनलेस अंटिल यू ओपन योर थॉट प्रोसेस कि भाई प्राइस काम कैसे करता है, ऑप्शंस काम कैसे करता है, फ्यूचर काम कैसे करता है, अगर ये होगा तो मुझे क्या करना है। जो वो सिचुएशन होती है ना, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ प्राइस ओपन्स 1% अप टुडे, व्हाट इफ प्राइस ओपन्स 10% अप टुमारो, व्हाट आई विल डू। अगर आपके पास वो प्लान रेडी है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, वरना मत कीजिए। पहले वो प्लान पर फोकस कीजिए। 80% of the people in this industry which are retailers, what they generally do, वो ट्रेड लेते हैं किसी के भी कहने पर, और जब वो ट्रेड ले लेते हैं और जब वो रात को SGX देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, अरे यार ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है। क्यों यार, प्लान करो ना अपना ट्रेड कि मैंने ट्रेड लिया, चलो मुझे मालूम है कि मेरा रिस्क क्या है। अदरवाइज तो आप सट्टा खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, विच इज नॉट लॉजिकल, राइट? So this is what I wanted to say. कभी कभी हो सकता है थोड़ा हार्श हो जाता हूँ, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैंने लोगों को पैसा डुबोते देखा है, मैंने लोगों को पैसा कमाते भी देखा है, राइट? और मैं खुद भी कमा रहा हूँ। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे कमाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट लुकिंग टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। ट्रेड को समझिए और ट्रेड को कीजिए। 50 ट्रेड आती हैं दिन में, 500 ट्रेड आती हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अपना स्पेशलाइजेशन पकड़िए और आगे बढ़िए। आज की डेट में मैं एक नई चीज सीख रहा हूं, विच इज पेयर ट्रेडिंग। मैंने पहले नहीं की, आई हैव बीन फैसिनेटेड अबाउट इट, एंड दैट इज अ वेरी लो टॉक्ड थिंग इन दिस मार्केट, बट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय FIIs, DIIs अ लॉट, राइट? और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, और मैं उसमें तब तक फुल फ्लेजेड एंट्री नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर लेता कि यस, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इंपॉर्टेंट ये, अगर आपका जो करंट चल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नए को तब पकड़िए जब उस पर चैंपियन बन जाइए। टिल दैट टाइम डोंट ग्रैब एनीथिंग न्यू, कंटिन्यू विद योर ओल्ड एग्जिस्टिंग थिंग। it will make you profitable. Don't change your system so often, because changing the system is killing your process. मुझे इंडिकेटर से समझ में आता है, मेरी बात इंडिकेटर के साथ में जाती है, इंडिकेटर के साथ हो जाती है। मेरी बात प्राइस एक्शन से होती है, मेरी बात प्राइस एक्शन से होती है। मुझे RSI से समझ में आता है, RSI समझ में आता है। मुझे ATR से काम करना है, ATR से करना है। इंडिकेटर सारे प्राइस से ही बने हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम, नथिंग एल्स। कोई भी इंडिकेटर ले लो, प्राइस और वॉल्यूम को ही लेकर के बना है, और टाइम। दीज आर द ओनली थिंग। कुछ लैगिंग बन गए, कुछ लीडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वन यूजेस इट। Just requesting, follow the process at least for a year or so that you are confident कि यार मेरे को कहीं से लॉस हो जाएगा, मैं इससे निकाल लूंगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आपको एक सेटअप में, आप दूसरे पे मत जंप कीजिए। और मैं अभी भी, मतलब जब मैं पेयर ट्रेडिंग वर्क कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू एनीथिंग एल्स। दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी which I always prefer to take in the beginning, but yes, here I am taking in the end, but that is very, very much important for all of us. With this, I would like to say thank you to everyone who joined and bear to hear me for so long. With this, I'll stop the recording.